All right. So the topic which we were talking about yesterday, that wait, I'll share the screen first. Okay. I hope the screen is visible and I am audible. Yes, sir. Okay. Okay. Good morning. Good morning, Anupam. I just wanted to talk to you, Anupama, because since you are coming for the first time, that is why I want you to please unmute yourself and speak, if possible. All right. So the topic which we were talking about yesterday is transportation problems. Sorry. Yeah. Can anyone tell me what do we mean by transportation? What exactly transportation is? सर लाइक मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना. Exactly. We are just transferring the material from one place to another. Now, why we are studying this? Because in business world, especially if we are into the manufacturing, it most of the time it is like the factory is in the different location and the warehouse is on in the different location or the retail outlet is into the different location. ठीक है, फैक्ट्री कहीं और होती है, वेयर हाउस कहीं और होता है, रिटेल आउटलेट कहीं और होता है. सो वी नीड टू एक जगह असेंबल हुआ या प्रोड्यूस हुआ वहां से उठा करके उसको वेयर हाउस तक या जो भी हमारा रिटेल आउटलेट है वहां तक पहुंचाने का काम करना पड़ता है. नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और हमें इतना एनालिसिस क्यों करना है? बिकॉज सपोज आई हैव थ्री फैक्ट्रीज इन थ्री डिफरेंट लोकेशन. सपोज दिल्ली में मेरी एक फैक्ट्री है, जयपुर में एक है और एक कोलकाता में है. नाउ हर फैक्ट्री से और मेरे वेयर हाउस जो है वो तीन अलग सिटीज में, तीन अलग स्टेट्स में है. नाउ I can send material, the produce the finished good from Kolkata to any of these three warehouses. I can send material from Jaipur to any of these three locations, and I can send material from Delhi to any of these three locations. Now the problem is that cost हर लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजने के लिए अलग अलग होगी. सपोज आई सेड कि मेरी फैक्ट्री है, वन इज इन कोलकाता. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन यूनिट्स, द फैक्ट्रीज. Second is in Delhi. Third is in Jaipur. And when we talk about warehouses, the warehouses like let's suppose one is in Mumbai, second is in Hyderabad, and third, let's suppose, is in Jodhpur. Now I can send material from Kolkata to Jodhpur. I can send material from Kolkata to Mumbai. I can send the finished goods from Kolkata to Hyderabad. Similarly, from Delhi to Mumbai, from Delhi to Jodhpur, and from Delhi to Hyderabad. From Jaipur to Mumbai, from Jaipur to Hyderabad, from Jaipur to Jodhpur. Now these all these things, like from this one first factory to all these three locations, from this the second factory to all these three locations, from this third factory to all these इन तीनों लोकेशन पे मैं आराम से भेज सकता हूँ. नाउ देर आर डिफरेंट कॉस्ट. सपोज कोलकाता से जोधपुर अगर मैं बेचता हूँ, मेरी पर यूनिट कॉस्ट आती है 20 रुपीज. सो कॉस्ट इज 20 रुपीज. इफ आई सेंड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, द कॉस्ट इज लेट सपोज 18 रुपीज.
From Kolkata to Hyderabad, let's suppose it is 16 rupees. Similarly, from Delhi to Mumbai, it is 12 rupees. From Delhi to Hyderabad, let's suppose it is 21 rupees. From Delhi to Jodhpur, let's suppose it is 16 rupees per unit. Similarly, from Jaipur to Mumbai, let's suppose it is 25 rupees. From Jaipur to Hyderabad, it is 16 rupees. From Jaipur to Jodhpur, let's suppose it is 8 rupees. So different costs are given, right? This is cost per unit. अभी तक जो मैंने बोला वो समझ में आया? Yes. Yes, sir. We have Yes, sir. three different factories, 1 2 3, and we have 3 different warehouses. It is not like कि 3 फैक्ट्री है तो 3 ही warehouse है, 4th warehouse भी हो सकता है. So जितने भी वेयर हाउसेज हैं उन सब पे मैं अपनी हर फैक्ट्री से मटेरियल सेंड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाई आई नीड टू एनालाइज दिस एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दिस कि अगर ये कॉस्ट मेरी मिनिमाइज हो जाए, हमने कहा था कि ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स में we work on only maximum time we work only on to the for the two objective, minimization of the cost, minimize the cost or maximize the profit, maximize the profit. Now in this particular transportation problem we will always be dealing with the minimization of cost. It is not like कि कभी आपको profit based question given नहीं होगा. We will convert the maximization problem into the minimization problem. So जब भी हमें transportation problem का question मिले, हमें सबसे पहले ये चीज ensure करनी है कि ये minimization की problem है या maximization की problem है. मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ वर्ड्स जो उसमें गिवन हो, लाइक उसने कह दिया कि फॉलोइंग टेबल शोज द कॉस्ट पर यूनिट. नाउ इट इज कॉस्ट. कॉस्ट अगर गिवन है, जो मेरा डेटा है वो कॉस्ट का है, एक कॉमन सेंस पे हम बात करें तो ये सिंपली है सर कि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट. इफ द डेटा इज लाइक टाइम, दैट टाइम कंजम्पशन पर यूनिट इज दिस, अगेन टाइम को मैं मिनिमाइज करना चाहूंगा, अगेन इट इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. सिमिलरली इफ इट इज टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, सो प्रॉफिट को मैं हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहूंगा, तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है. सेल्स पर यूनिट अगर गिवन है या ऐसा कुछ सेल्स से रिलेटेड डेटा गिवन है, सेल्स को भी मैं मैक्सिमाइज करना चाहूंगा, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी. सो बाय चेकिंग द डेटा, किस तरह का डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, उस डेटा के हिसाब से सबसे पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी है वो ये करनी है वेदर इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. इफ इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, आपको कुछ नहीं करना, आपको आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है. लेकिन अगर ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना है मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में. कैसे करना है वो वी विल टेक अ क्वेश्चन एंड देन आई विल टेल यू. समझ आई ये बात? यस सर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, कोई भी डाउट नहीं है? No, sir. Okay, now wait. Now again I am writing transportation problems. Now in transportation problems आपको मैंने एक रफ स्ट्रक्चर दिखाया कि क्वेश्चन किस तरह से आपके पास में होता है. अभी हम क्वेश्चन भी ले लेंगे, अभी नहीं तो सेकंड जो अपनी आज क्लास है उसमें ले लेंगे. नाउ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में हम दो तरह के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि आपने एलपीपी में भी ये नाम बहुत सुना हुआ है, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन. So feasible solution we'll find out first, and second is optimal solution. Optimal solution या optimum solution. We work for finding, first we will find the feasible solution, and second then we'll try to check that it is optimal solution or not. इसको we can say ऑप्टिमैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं. दैट जो भी आपने फिजिबल सॉल्यूशन निकाला उसको चेक करिए कि ये ऑप्टिमम है या नहीं. नाउ व्हाट इज ऑप्टिमम, व्हाट इज फिजिबल? फिजिबल सॉल्यूशन कैन बी लाइक कि सर अगर हम ये मेथड यूज करके इस तरह से जाते हैं या इस ट्रैक से जाते हैं तो अपनी कॉस्ट 100 रुपए आएगी. दिस इज व्हाट द थिंग. कुछ और मेथड टेक्निक लगाया,
सपोज उससे 98 रुपीज कॉस्ट निकल के आ गई टोटल कॉस्ट. सो फिजिबल सॉल्यूशंस कैन बी मोर देन वन. नाउ आउट ऑफ दोज फिजिबल सॉल्यूशन, जो भी फिजिबल सॉल्यूशन आपने निकाला वो बेस्ट सॉल्यूशन है या नहीं. बेस्ट सॉल्यूशन इन द सेंस, सपोज आपने कॉस्ट निकाली, वो मिनिमम कॉस्ट है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग करते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में जब हम क्वेश्चन से डील करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन एंड देन वी विल कम ऑन टू द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. राइट नाउ हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन पे ही बात करेंगे. फिजिबल सॉल्यूशन निकालना आ गया तो 70% काम ट्रांसपोर्टेशन का हो गया. ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की बात डिपेंडिंग ऑन द टाइम वी विल डिसाइड लेटर ऑन. सो फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स. हम लोग 3 टेक्निक्स की यहां बात करेंगे. फर्स्ट टेक्निक इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. नॉर्थ वेस्ट corner method. Second is least cost method. Least cost method. And third is Vogel's approximation method. Vogel's approximation method. So, feasible solution, optimality test. Feasible solution is like 3 कॉस्ट भी निकल के आ सकती है कि सर मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज किया, मेरी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज आ रही है. सर लीस्ट कॉस्ट मेथड से यूज किया, सर मेरी कॉस्ट जो है मेरी तो 98 रुपीज आ रही है. वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से किया, लेट सपोज सर मेरी 96 आ रही है. सो डिपेंडिंग ऑन द मेथड यू विल बी गेटिंग डिफरेंट फिजिबल सॉल्यूशन. नाउ ऐसा नहीं है तीनों मेथड लगाने हमको, या तो क्वेश्चन में मेंशन हो कि हमें कौन से मेथड से करना है, अदरवाइज आप इन तीनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं. यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ दीज मेथड. वो फिजिबल सॉल्यूशन अगर पूछ रहे हैं तो सिर्फ मेथड लगा करके सॉल्यूशन हमने कर दिया, दैट इज ऑल. बट अगर वहां लिखा हुआ है चेक फॉर द ऑप्टिमैलिटी ऑल्सो, जो भी सॉल्यूशन आपने निकाला है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं, वो मिनिमम कॉस्ट है या नहीं, उसके लिए वी विल मूव ऑन टू दिस सेकंड पार्ट व्हिच इज ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के अंदर वी विल स्टडी वन मेथड. देयर आर टू मेथड्स. वन इज मोदी, MODI, which is modified distribution method, and second is stepping stone method. We will focus on one method only if time permits. Otherwise हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, फिजिबल सॉल्यूशन की टेक्निक्स को समझना. इज इट क्लियर? Yes, sir. फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमम सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है वो समझ आ गया? Sir, MODI का function? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. Modified distribution method. SS is stepping stone. STEPPING. Stepping stone. Stepping stone method. इन दोनों में से कोई सा भी एक मेथड अगर हम कर लेते हैं तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट उससे हो जाता है. बट मेन फोकस इज दिस. इन शॉर्ट वी कैन राइट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एज NWC, least cost as LCM, and WAM, popularly known as Vogel's approximation, popularly known as WAM. The best method जो आपको एक बार में बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन देगा वो है ये वाला Vogel's approximation method. और कई बार ऐसा होता है कि Vogel's approximation method से सपोज आपका मिनिमम जो फिजिबल सॉल्यूशन आया वो आया 98 रुपीज. जब आपने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाया तो स्टिल इट इज 98, मतलब वो ऑलरेडी मिनिमाइज कॉस्ट थी, वो ऑलरेडी ऑप्टिमम सॉल्यूशन था. जो प्रोबेबिलिटी होती है वैम से बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, और वो ही ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में जाकर आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी बन जाता है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. थोड़ा साफ लिख दो, समझ नहीं आ रहा आधे आधे कुछ कुछ. मैं बोल रहा हूँ ना, आप बताओ क्या समझ नहीं आया. मैं वर्बली बोल देता हूँ, बोलो. सर ये VAM शायद, ये क्या लिखा है? VAM is the short form of this Vogel's approximation method.
उसकी शॉर्ट फॉर्म है V फॉर वॉगल, A फॉर अप्रोक्सीमेशन, M फॉर मेथड। ओके सर। और बताइए। ये क्या लिखा है SS के ऊपर वाला? MODI, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोदी मेथड। ओके सर। और कोई किसी को जो समझ नहीं आ रहा हो, देख के दिखाई नहीं दे रहा हो ढंग से, चलें आगे। यस सर। यस सर। ओके ओके। सो फिजिबल सॉल्यूशन पे हमें फोकस करना है, फिजिबल सॉल्यूशन की टेक्निक्स को समझना है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके, let me increase the font size। All right। Yes, is it visible clearly, the entire table? यस सर। Okay, Yes, sir. so Yes, sir. the question will be like something like this। मैं question एक बार बोलता हूँ। Question is like uh, either it's a simple one like solve the following transportation problem for the minimum cost। That means it has clearly said that जो भी ये data आपको given है, this is totally a I mean the cost per unit। Cost per unit in the sense, origin means we can say it's a factory, so there are three factories for this company, O1, O2, O3, which is calling as origin। then the destination मतलब warehouse भी हो सकता है, retail outlet भी हो सकता है, जो भी है। तो यहाँ origin से अपने को transport करना है material D1, D2, D3, D4, 4 destinations है। इन destinations पे हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है। नाउ अगर ओरिजिन 1 से मैं D1 पे ट्रांसपोर्ट करूं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है? If I transport a material from O1 to D1, so what is per unit cost? 13. 13, yes। If I transport from origin 3 to D3, what is the cost per unit? 15। If I transport from origin 2 to D4, O2 से D4 करूं, what is the cost? 13. 13 per unit, 13. right? So this is how this table will be given in the question generally, या फिर depending on the case given in the question theoretically आपको ये टेबल बनानी भी पड़ सकती है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई इन द सेंस उस फैक्ट्री से कितना मटेरियल आ सकता है। लेट सपोज O1 से 50 यूनिट्स, O2 से 70 यूनिट्स एंड O3 से 30 यूनिट्स। दिस इज दी
total supply which these origins can give, and for demand side, let's suppose D1 की डिमांड है 30 यूनिट्स, D2 की डिमांड है 25 यूनिट्स, D3 की डिमांड है 25 यूनिट्स और D4 की डिमांड है 40 यूनिट्स, वेट 60 यूनिट्स लेट्स सपोज। या ये डेटा भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं या डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स हैं उनकी डिमांड हर अलग अलग आउटलेट की कितनी है और उनकी सप्लाई जो ओरिजिन है जो फैक्ट्री है उनकी सप्लाई क्या है। यहां तक समझ आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है। नाउ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियरली क्वेश्चन में मैंने कहा कि यहां मेंशन्ड है दिस इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि उसने कह दिया ये सब कॉस्ट पर यूनिट है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। अदरवाइज कॉस्ट यूज कर रखा है, टाइम यूज कर रखा है, तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अगर ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये जो 13 है ये पर यूनिट कॉस्ट ना होकर के पर यूनिट प्रॉफिट दे दिया, तो फिर हमें क्या करना है वो हम क्वेश्चन लेंगे तब बात करेंगे। अभी ये मानते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्लियर है सर, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है। क्लियर? यस सर। राइट। नाउ सेकंड थिंग, जो दूसरी चीज हमें इंश्योर करनी है क्वेश्चन में, वो ये है दैट द टोटल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड शुड बी सेम, शुड बी इक्वल। आई एम अगेन रिपीटिंग, द सम ऑफ द टोटल सप्लाई एंड द टोटल डिमांड शुड बी इक्वल। आप ऐड करिए, सप्लाई का टोटल कितना आ रहा है? सो 150 and एंड 150. एंड डिमांड का टोटल? सर 140। इसको 40 कर लेते हैं अभी, लेट्स सपोज। अब करिए, जैसे 150 अब की बार आ गया सही है ना 150। सो सेकंड थिंग जो हमें इंश्योर करनी है वो ये करनी है कि सप्लाई साइड का टोटल और डिमांड साइड का टोटल सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सर हमेशा ही होगा, यहाँ तो मैंने खटाक से अभी मन से क्वेश्चन बनाया था इसलिए मैंने उसको 40 कर दिया, लेकिन ऐसा हम हर जगह नहीं करेंगे। क्वेश्चन में अगर गिवन है कि सप्लाई साइड का टोटल डिमांड साइड का टोटल सेम नहीं है तो उसे भी हमें एडजस्ट करना होता है। तो अभी आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो दो चीजें क्वेश्चन मार्क कर लें। पहली चीज कि अगर सर मैक्सिमाइजेशन हो तो क्या करना है, उसको मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट चीज जो माइंड में आपके अभी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए, इफ इट इज ऑफ अ मैक्सिमाइजेशन हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द मिनिमाइजेशन। सेकंड चीज, अगर डिमांड साइड और सप्लाई साइड का टोटल सेम नहीं है तो उसको टोटल को सेम कैसे करना है। ये दो क्वेश्चन अभी आप अपने माइंड में बिल्कुल रखिए, ये मैं बिल्कुल बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ ये मान के चलिए कि दोनों चीजें यहाँ पे सॉर्टेड है, दोनों चीजें सही है। पहली चीज ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है, दूसरी चीज द टोटल ऑफ सप्लाई एंड टोटल ऑफ डिमांड इज सेम। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये दोनों नहीं हो तो क्या करना है उसके लिए डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्या करना है, बहुत छोटी सी चीज है वो आगे करेंगे। सो ये पूरी तरह से एक क्वेश्चन आपको गिवन होता है और इस क्वेश्चन में आपको फिर इसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो मैंने आपको कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, फिजिबल सॉल्यूशन। एंड फिजिबल सॉल्यूशन के क्या मेथड्स बताए मैंने, कोई एक जना रिपीट करिए प्लीज। फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद दी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या है, उसके हिसाब से कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दो चीजें इंश्योर करने के बाद में हम सोचेंगे कि अब कौन सा मेथड लगाना है। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर अ फिजिबल सॉल्यूशन फॉर मिनिमम कॉस्ट एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं NWC, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान से देखिए। आप लोगों को डायरेक्शन पता है, नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है? यस सर। Yes.
ठीक है। तो इस टेबल का सिर्फ इतने से पोर्शन पे ध्यान दीजिए, मैं इसको भी एक बार जस्ट फोकस ऑन दिस पोर्शन। इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, कितने पोर्शन का? 13. यस, वेरी गुड, 13, ये वाला है ना। दिस विल बी द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इसमें किसी को दिक्कत है? No, sir. तो ये मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आप डील करिए बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अपना आया 13। अब ध्यान से देखिए, 13 का जो डेस्टिनेशन है वो है D1। D1 की डिमांड कितनी है? 40. और D1 पे O1 से सप्लाई कितनी आ सकती है? 50. 50। सप्लाई इज 50 बट द डिमांड कैन बी ओनली 40। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आई एम राइटिंग दिस 40। राइटिंग दिस 40 का मतलब यह है कि मैंने 40 यूनिट्स इसको अलॉट कर दिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, मैं सर एक इसको, क्वेश्चन था बोलो बेटा। सर, वो टोटल सप्लाई है और टोटल डिमांड है या हर एक जगह की अलग अलग सप्लाई और डिमांड है? टोटल सप्लाई टोटल डिमांड मतलब सर मतलब ये O1 50 टोटल सप्लाई दे 50। सकता है 50 हाँ, और D1 टोटल सप्लाई ले सकता है 40, मतलब इन तीनों से या हर एक के लिए अलग नहीं नहीं अलग? नहीं नहीं नहीं, ओवन टोटल सप्लाई दे सकता है 50 इन तीनों को, इन चारों को, डेस्टिनेशन को। अब उसमें से कोई भी कितनी भी ले ले, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इसी सर तरह फिर से 40 हाँ, एक बार में कैसे जाएगी? 40 एक बार में दे देंगे ना अपन इसको, क्या दिक्कत है? तो ओवन फिर से O2 और O3 से? O2 O3 से देना जरूरी थोड़ी है अच्छा, भाई। ओके सर। अपना अपना यहाँ पे सी क्वेश्चन आपका वैलिड है। एक मिनट, मैं इसको पेंट पे लेकर ही आपको प्रेजेंट करता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, आपका क्वेश्चन वैलिड है। द थिंग इज, हमारा यहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि सबकी डिमांड फुलफिल हो जानी चाहिए, सारे डेस्टिनेशन की डिमांड फुलफिल हो जानी चाहिए। कहां से हो रही है वो डिपेंड करता है अपने मेथड पे, अपन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। क्लियर? ओके सर। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, ओके। सो मैंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और एनडब्ल्यूसी के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमने सबसे पहले ये देखा कि 13 ये वाला सेल आ रहा था, और इस सेल के अंदर मैंने देखा D1 इसकी डिमांड थी 40, और इसका जो ओरिजिन था वो O1 है, तो O1 पे सप्लाई थी 50। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसकी डिमांड 40 है तो सप्लाई 50, तो दोनों में से जो कम होगा वही मैं दूंगा इसको। कई बार होगा डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, तो उतनी ही यूनिट मैं उसको दे सकता हूं, तो मैंने 40 यूनिट उसको दे दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं है। तो अब जब 40 यूनिट इसको चला गया, यानी इसकी पूरी डिमांड हो गई अब 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. पूरी Yes, sir. डिमांड D1 की फुलफिल हो चुकी है, एंड O1 की टोटल सप्लाई में से 40 जा चुका है। कितना बचा? यस, 10। इज इट क्लियर? डाउट है तो बेटा पूछो, बहुत छोटी सी चीज है, जस्ट फोकस। सिर्फ गेम खेल रहे हैं अपन और कुछ नहीं कर रहे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट वाला सेल लिया, उसके अंदर था D1 की मैंने डिमांड देखी 40, और D1 पे जो O1 से, क्योंकि इस वाले सेल के लिए जो ओरिजिन है वो O1 ही है, O1 की सप्लाई आ सकती थी 50, तो मैंने 40 उसको दे दिया, इसकी पूरी डिमांड फुलफिल हो गई, इसलिए इसको 0 कर दिया, और उसकी 50 में से 40 चला गया, तो 10 बचा। बताइए कोई दिक्कत इसमें? No, नो sir. सर। चले आगे। नो सर। यस। Yes. यस, सो इसकी पूरी डिमांड फुलफिल हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इसको, मतलब ये खत्म हो चुका है, मुझे इसको कंसिडर ही नहीं करना है। अब बचा ये वाला, इतना D2 से लेके ये वाला सेल। अब बताइए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा? सर 11। 11। 11. 11 की डिमांड कितनी है? 25. 25। सप्लाई कितनी आ सकती है? Sir, 10. 10। तो इसको मैं दे दूंगा 10, क्योंकि डिमांड भले ही 25 थी, लेकिन इसको 10 ही मिल सकता है अभी। तो 25 में से 10 मिल गया, तो कितनी और डिमांड बची?
सर 15 15. 15 और ये सप्लाई पूरी जा चुकी है, इट विल बिकम 0। तो अब O1 पूरी तरह से खत्म हो चुका है, O1 से अब और सप्लाई नहीं आ सकती। इज इट क्लियर? चले आगे। Yes, sir. अब Yes, sir. बताइए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे कौन है? सर 14 14 की 14. डिमांड कितनी है? सर 15 15 और सप्लाई 70 आ सकती है, तो पूरा 15 इसको दे दो। तो ये तो हो गया 0 और यहाँ कितना बचेगा? सर 55 Sir, 55. 55। तो ये इसकी पूरी डिमांड फुलफिल हो गई, तो D2B कैंसल्ड आउट। अब नॉर्थ वेस्ट पे कौन है? 12 12 की 12. डिमांड कितनी है? 25 25. 25 और सप्लाई इसमें 55 आ सकती है, तो पूरा 25 दे दो। पूरा 25 इसको यहां से दे दिया, ये हो गया 0। तो आई विल क्रॉस इट एंड आउट ऑफ दिस 55 कितना बचा? 30. 30। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट का कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं। आप सिंपली यहाँ देखिए 13 और 12 ये दो ही बचे आपके पास में, टोटल इनके पास सप्लाई आ सकती है 30, इसकी डिमांड है 60। तो कितना देंगे इस 13 को? किसी को भी दे दो आप, इस 13 को 30 दे सकता हूं मैं, क्योंकि इसके पास सप्लाई 30 आ सकती है। तो ये 0 हो गया और ये बचा 30, तो ये 0 हो गया, तो ये भी खत्म। और अब ये 12 बचा, देख लो इसकी सप्लाई और इसकी डिमांड दोनों सेम है। सो ये 30 दे करके इसको भी, दोनों को भी 0 कर दो। क्वेश्चन फिनिश। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. तो सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस साइड 0 होगा वो कट कर देंगे। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हॉरिजॉन्टल पहले आएगा या वर्टिकल, जो भी 0 होता जा रहा है उसको खत्म कर, कट करते जाओ, लाइन खींचते जाओ, पूरा वो लाइन ही कट हो जाएगा। हाँ पूरा, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रहा ना। अगर किसी की डिमांड फुलफिल हो गई तो वहां पे अब कुछ देना नहीं है, इसलिए वो कट हो गया। अगर किसी की सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई तो अब वो कुछ कर नहीं सकता, दे नहीं सकता, तो उसको भी कट कर दिया। बताइए दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम अलोकेशन। ये हमने यूनिट्स अलोकेट कर दी। तो अब अपना काम होता है टोटल कॉस्ट निकालना, कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हिसाब से इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो ये अलोकेशन आपने किया है उससे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। कुछ नहीं करना, ये आप 13 यूनिट पर यूनिट, 13 रुपीज पर यूनिट थी और कितने यूनिट दिया? 40। तो आप लिखेंगे 13 इंटू 40 प्लस, फिर आगे चलिए तो यहां आए 11 रुपीज पर यूनिट था, 10 यूनिट्स दिया तो 11 इंटू 10 प्लस एक और है यहां पे 14 इंटू 15 प्लस एक और है 25 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 30। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आया वो आपका फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये बेटा एक फिजिबल सॉल्यूशन अपना आ गया। इसका जो टोटल कॉस्ट आएगी दैट विल बी दी फिजिबल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। बताओ, इसीलिए मैं कह रहा था कि बताओ इस टॉपिक में कुछ है क्या ज्यादा टेक्निकल? गेम खेलने जैसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम लोग नॉर्मल कॉपी पेन पे गेम खेलते हैं, बस वो करना है और कुछ नहीं करना, यस सर। है ना? सो दिस इज नॉट दैट टेक्निकल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए करना भी था, लेकिन बहुत इजी है करने का, ये रीजन और था। सो यहां तक अपन आज इसको रखते हैं। टुडे आई हैव योर अनदर क्लास एट 3 PM 3 PM आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस बाय दिस मेथड एंड देन विल डन विद द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सो आई विल सी यू एट 3 PM। अभी कोई भी डाउट हो आज जो भी अपन ने अभी इस क्लास में डिस्कस किया, यू कैन आस्क।